چلیے تو دیکھیے کل جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس کو جو ہے اس کو دیکھا تھا. میں نے اس کو تھوڑا سا آج ری ارینج کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے وہ وی انڈرسٹوڈ دا بیک گراؤنڈ. اس کے بعد پھر وی ہیڈ ریپیٹڈ ریڈنگس ٹو ہیو فل انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ. دین وی پکڈ اپ نیو اینڈ چیلنجنگ ورڈس. Then we look for its meanings. Next we have started the translation, and for starting the translation we have breaking the sentence into a small controllable segments or bits. So now this is what we did yesterday. This is the words meanings. یہ اس کے الفاظ اور اس کے معنی ہیں. یہ آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیے ہیں سب. اب جو ہے وہ ہم نے کل اس کے بٹس بنا لیے تھے. ملیزیا, اس کے بعد اس کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے. اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوگا. ملیزیا نظام ملکی دستوری. دستور ہمارے اردو میں کہتے ہیں دستور, لیکن صحیح لفظ ہے دستور بضم الدال. تو ملیشیا is a constitutional monarchy with a unique arrangement. ملیزیا نظام ملکی دستوری with a unique arrangement. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو یونیک ارینجمنٹ ہے یہ موصوف صفت ہے. اس کے اندر ارینجمنٹ جو ہے وہ موصوف ہے اور یونیک اس کی صفت ہے. تو پہلے جو ہے, اور یہ ایڈجیکٹیویل فریز ہے, تو اس میں پہلے ہم جو ہے وہ ارینجمنٹ کا ٹرانسلیشن کریں گے, پھر اس کی صفت یعنی یونیک کا ٹرانسلیشن ہم کریں گے. وہی ہم یہاں پر ہم نے کیا ہے. با ہم لائے ہیں ود کے لیے. یہ جو ود ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ با, حرف با کا ہم نے استعمال کیا ہے. بہرحال تو پھر آپ یہاں سے دوبارہ چلیے. ملیزیا نظام ملکی دستوری بنسق فرید. اب آگے یہاں سے آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے آج. ویئر ویئر کا کیا ترجمہ کریں گے؟ حیث the national throne العرش الوطنی changes hands. دیکھیں اس کے میننگز آپ اوپر چلے جائیے. دیکھیے چینجز ہینڈس کا کہیں کچھ ہے, یہ ہے چینجز ہینڈس, جس کا ترجمہ ہے ینتقل یا یتم تبادلہ. اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ غور کیجیے گا. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ورب ہے, یعنی فعل ہے. تو ورب اور فعل ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں, آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ کرنی پڑیں گی, غور کرنا پڑے گا اس کے اندر. کیونکہ ورب یا فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. تو اب آپ کو جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کوئی زمانہ ہے کہ نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے. آپ جو ہے وہ اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. چینجز ہینڈس, یہ کیا ہے, یہ فعل ہے. تو جب فعل ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ ساری باتیں دیکھنی پڑیں گی کہ یہ اس کے اندر زمانہ کون سا ہے. اگر آپ یہاں پر غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ چینجز جو ہے وہ کون سا ٹینس ہے, پریزنٹ ٹینس ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ
प्रेजेंट टेंस। तो वर्ब के अंदर जो है वो टेंस आ गया। प्रेजेंट टेंस में हम लोग जो है वो मुजारे इस्तेमाल करते हैं। फ़िअलुन मुदारे, फेल मुजारे। तो अब जो है वो आप फिर ऊपर जाइए, फिर आप इसके मीनिंग्स देखिए। यहाँ पर चेंजेस हैंड्स, और इसके दो मीनिंग्स दिए हैं, यंतकिलु व यतिमु तबादुल। हम दोनों को करके देखेंगे। वेयर द नेशनल थ्रोन चेंजेस हैंड्स, हैथु अल अर्शुल वतनी चेंजेस हैंड्स। इसका यहीं पे हम ट्रांसलेशन करेंगे, और इसका ट्रांसलेशन करेंगे फेले मुजारे से, यानी यंतकिलु या यतिम तबादुलुहु। अब इसको, ये जो हमने अभी किया है ना ये पूरा, इसमें आपको जो है वो जरा थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा कि वर्ब को जो है वो हम कहाँ पर लाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने आपको जो है वो ऑर्डर बताया था। ऑर्डर क्या होता है? हमने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर, आई एम सॉरी, इंग्लिश में जिससे हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसके अंदर ऑर्डर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले जो है वो फाइल, उसके बाद फिर फेल, उसके बाद फिर मफऊल। तो ये तो इंग्लिश का ऑर्डर था, लेकिन ये इंग्लिश का पूरा ऑर्डर था ना। और आप जो है वो जा रहे हैं इंग्लिश से अरबिक के अंदर। अरबिक का ऑर्डर क्या है? अरबिक के ऑर्डर को जो है वो आपको फिर से जो है वो मालूम करना पड़ेगा कि अरबिक का ऑर्डर क्या होता है। हम आपको याद दिला दें कि अरबिक के अंदर जो ऑर्डर होता है वो होता है सबसे पहले वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट या फाइल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले तो आता है, आई एम सॉरी, फेल, उसके बाद फिर फाइल, उसके बाद फिर मफऊल। तो अब ये जो पूरी बहस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो है वो हमको फेल के अंदर हमको पूरी जो है वो देखनी पड़ेगी। यानी अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो द नेशनल थ्रोन अल अर्शुल वतनी, ये तो है फाइल, और ये है फेल। तो पता ये चला कि आपको ये जो चेंजेस हैंड्स है इसका ट्रांसलेशन पहले करना पड़ेगा। आप इसको जो है वो यहाँ ले जाइए, यहाँ ले आइए आप इसको। आई एम सॉरी, चेंजेस हैंड्स ये पहले आपको करना पड़ेगा। हैसु यंतकिलु, ये यतिम मुतबादुलुहु। अब अल अर्शुल वतनी जो है वो उसका बाद में हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये देखिए पूरा हमने जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो है वो आ,
इसको गोया हमने जो है वो आगे पीछे कर दिया। देखें ना आप देखिए, यंतकिलु को जो है वो हम पहले ले गए और अल अर्श को जो है वो हमने नीचे कर दिया। ये बात जो है वो देखने की है आपके लिए, ये बहुत काम की बात है और बहुत जरूरी बात है। खैर बहरहाल, अब जो है वो आपका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हो रहा है, हैथु यंतकिलु अल अर्शुल वतनी। फिर ऊपर से जाइए, मलेशिया निज़ामुल मलिकियुन दस्तूरियुन, मलेशिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, निज़ामुल मलिकियुन दस्तूरियुन बिनस्किन फरीदिन। उसके बाद फिर हैथु, उसके बाद फिर यंतकिलु, उसके बाद फिर अल अर्शुल वतनी। तो अब ये यहाँ तक गोया सेंटेंस का एक पार्ट हो गया। अब मसला रह गया यतिम तबादुलहु का। यतिम तबादुलहु, ये जो इतना है, ये बहुत ही आजकल अरबिक प्रेस के अंदर, अखबारात के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। यानी क्या होता है, तम्मा यतिम्मो। आप जानते हैं कि तम्मा यतिम्मो का मतलब होता है किसी चीज का तमाम हो जाना, यानी मुकम्मल हो जाना। लेकिन यहाँ पर तम्मा यतिम्मो और उसके साथ फिर जो है वो, अगर आप कोई भी मसदर लगा दें तो ये हो जाता है, ये बराबर हो जाता है, आई एम सॉरी, इट इज इक्वल टू फेल मजहूल। तो अगर फेल मजहूल माजी का है तो तम्मा के साथ इसको करेंगे, और अगर मुजारे है, फेल मजहूल मुजारे, तो यतिम्मु के साथ इसको करेंगे। तो गोया ये जो पूरा था यहाँ से यतीम तबादुलहु, इसको हम जो है वो यहाँ दोबारा से करते हैं आपके लिए। यतीम तबादुल हैथु यतिम तबादुल, तबादुल का मतलब होता है एक्सचेंज, तबादुल, और उसके बाद फिर जो है वो ये आ गया अल अर्श अल वतनी, यतिम तबादुल अल अर्शिल वतनी, है ना। तो ये यहाँ से हो गया हैथु यतिम्मु तबादुल अल अर्शिल वतनी। या आप कर सकते हैं हैथु यंतकिलु अल अर्शुल वतनी। ये दोनों तरह से ये हो सकता है। ठीक है, अब जो है वो आप आगे चलिए। एवरी 5 years, इसमें कहीं आफ्टर भी होगा मेरे ख्याल में। हाँ अच्छा, एवरी 5 years, एवरी 5 years का ट्रांसलेशन हम देखते हैं कैसे करेंगे। एवरी 5 years, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, ज़र्फ़े ज़मान। तो ये जो है ये ज़र्फ़े ज़मान है, यानी इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे कुल्ला खमसा सिनीन, खमसा 5 सिनीन ईयर्स। आप अगर चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं बाद कुल्ली
خمس سنین. تو اب آپ پھر سے جو ہے وہ دیکھیے اس کو. اچھا تو بہرحال یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے ایوری 5 years. اب آپ اس کی جو ہے نا یہ جو ہے یتیم تبادل ہو، اس کی بہت ساری مثالیں آپ دیکھ لیجیے گا تمہ یتیمو کے ساتھ آپ کیسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ یہاں پر جو ہے وہ امثلہ اس کی دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا was published. آپ نے کہا was sold. آپ نے کہا was refused. آپ نے کہا will be will be will be received. آپ نے کہا will be considered. اب یہ دیکھیے آپ نے یہ جو تین ہیں یہ تو پاسٹ ٹینس سے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں عربی کے اندر تم طبعہ، یعنی کیا مطلب اس کا دوسرے الفاظ میں طبع طبع مجہول. I'm sorry. وہ پہ مجھ کو ضمہ لگانا نہیں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں. تم طبعہ was sold. تم بیعہ یا بیعہ. was refused. تم رفضہ یا رفض فعل مجہول پیسو وائس. اب یہ دونوں جو ہیں یہ فیوچر ٹینس میں ہیں. تو اب اس کے لیے آپ مضارع استعمال کریں گے اور آپ کہیں گے یتم استقبالہ will be considered. یتم اعتبارہ. تو یہ کچھ میں نے آپ کو گویا مثالیں دے دی ہیں. یہ مثالیں جو ہیں وہ آپ کو بعد میں بھی کام دیں گی. بہرحال اصل جو چیز آپ کو بتانی تھی وہ تمہ کا استعمال بتانا تھا. بہرحال تو یتم تبادلہ، یتم تبادل العرش الوطنی کل 5 سنین یا بعد کل 5 سنین یا 5 سنوات بھی آپ کر سکتے ہیں. بٹوین
rulers. Between rulers. बिटवीन के लिए हमने आपको बताया था कि बैना सीधा साधा लफ्ज है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बैना ना लाकर बेहतर ये कि आप फीमा बैना, इसके अंदर ज़रा ज़्यादा वसत है, फीमा बैना रूलर्स, रूलर्स के लिए हाकिम, जिसका प्लूरल होता है हुक्काम, हुक्काम ऑफ द कंट्रीज 9 स्टेट्स। अब देखिए ये जो पूरा सेंटेंस है ये है कंस्ट्रक्ट या मुरक्कबुन इदाफी है, ये पूरा मुरक्कब इदाफी है। मुरक्कब इदाफी या जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट फ्रेज। आप जानते हैं कि जब दो लफ्जों को मिलाना होता है तो उसके लिए मुदाफ मुदाफ इलैह होता है, बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। और हमारे यहाँ इंग्लिश के अंदर ये मुदाफ मुदाफ इलैह की जगह हम आमतौर से ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोया आमतौर से अगर आप देखें तो आपको ये मिलेगा कि आपके लिए बहुत आसान सा रास्ता ये है कि आप ऑफ का इस्तेमाल करें मुरक्कब इदाफी के लिए। हाँ, जैसे यहाँ पर है रूलर्स, रूलर्स ऑफ द कंट्रीज 9 स्टेट्स। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और आ गई, वो क्या आ गई, ये वो चीज जो आई है वो आ, आ, ये आ गई जिसको हम कहते हैं एपोस्टोफियस, यानी बाज औकात जो है वो एपोस्टोफियस से इजाफत या कंस्ट्रक्ट को जाहिर करते हैं। कंट्रीज 9 स्टेट्स का क्या मतलब है, कंट्रीज 9 स्टेट्स मीन्स कंट्रीज 9 स्टेट्स। कंट्रीज 9 स्टेट्स means 9 states of the country, isn't it? तो ये गोया एक ही चीज है। ये जो है ना, ये एपोस्टोफियस जो ऊपर थोड़ा सा छोटा सा कॉमा लगा देते हैं, ये ऑफ ही के माना में होता है, लेकिन इसमें जो है वो मुजाफ इलैह को पहले कर देते हैं और मुदाफ बाद में रहता है। बहरहाल कुछ भी हो, हम तो इसका जो है वो मुदाफ मुदाफ इलैह से ही तर्जुमा करेंगे। और मुदाफ मुदाफ इलैह के लिए हमारे यहाँ कोई क्या कहते हैं अरबिक के अंदर कोई ऑफ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इजाफत के कायदे से हम दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ देते हैं। मुरक्कब इदाफ़ी, आप जानते हैं इसको कि मुदाफ मुदाफ इलैह के क्या कायदे हैं और क्या उसके ऊपर कौन कौन से उसूल लागू होते हैं, कौन कौन से अवामिल उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा कि मुरक्कब इदाफी क्या होता है, मुजाफ मुदाफ इलैह आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो है वो देखिए मल्टीपल इजाफत हो गई, यानी तअद्दुद अल इजाफा। एक तो इजाफत हो गई यहाँ पर जो है वो हुक्काम की, हुक्काम की इजाफत जो है वो आ, मैं एक मिनट जैसा आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। एक तो हुक्काम की इजाफत हो गई और दूसरे ये इजाफत हो गई कंट्रीज 9 स्टेट्स की। तो ये दो इजाफतें हैं। तो अंग्रेजी में तो एक जगह ऑफ आपने इस्तेमाल किया है ना, एक जगह आपने ऑफ इस्तेमाल किया और एक जगह जो है आपने
एपोस्ट्रोफियस इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी बात है, आपका काम चल गया। अब आपको करना है इसे अरबिक में, तो अरबिक में आप कैसे करेंगे इसको आपको देखना है। बहुत आसान सी चीज़ है बिल्कुल, हम इसको जो है वो करने की अब कोशिश करते हैं अरबी में। हुक्काम, ये तो हो गया रूलर्स, हम दोबारा से इसको जो है वो लिख देते हैं, हुक्काम। उसके बाद 9 स्टेट्स। अब ये 9 स्टेट्स वैसे तो अदद मादूद है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप समझ लिए, आप सिफत मौसूफ मानकर चलिए इसको, हुक्काम। और स्टेट कहते हैं अल विलाया, हुक्कामुल विलायात, प्लूरल है स्टेट्स। 9 अत्तिस्आ, हुक्कामुल विलायात अत्तिस्आ। अब ये वाला जो है ये अपोस्ट्रोफियस कंट्रीज, इसको जो है वो आप कैसे करेंगे, इसके करने के दो तरीके हैं। आ, आ, एक तो तरीका बहुत आसान सा, आप यहीं पे उसको कर सकते हैं, लिल बिलाद ऑफ द कंट्री, हुक्कामुल विलायत तिस्आ लिल बिलाद, यही ज्यादा आसान है। तो गोया लाम यहाँ पर जो है ये लाम इजाफत के लिए है, लाम इजाफत है ये, आप उसको पढ़ चुके हैं। चलिए अब जो है वो आगे का मसला आ गया, आगे फिर एक और वर्ब आ गया, और ये वर्ब जो है ये पैसिव वर्ब है, पैसिव वॉइस है, यानी क्या है ये, मजहूल है, फेले मजहूल। अगर आप जो है वो दोबारा मीनिंग के अंदर जाएं, मैं आपको फिर ले जा रहा हूं मीनिंग के अंदर, हेडेड बाई, हेडेड बाई यरअसु कुल्लम मिनहा, यरअसु कुल्लम, आप जो है वो सबसे पहले तो हेड, टू हेड समथिंग यानी किसी चीज का रईस होना, किसी चीज का हेड होना, तो ये जो है वो आपको मालूम है। तो अब हेडेड बाई इस्लामिक रॉयल्टी, हम जानते हैं कि फेले मजहूल को अरबिक के अंदर हम कहते हैं, अरबिक के अंदर इसको हम कहते हैं मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु, यानी जिसके फाइल का पता नहीं है, फेल तो है, कोई फाइल है भी जरूर लेकिन पता नहीं है कि कौन है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ अंग्रेजी के अंदर परेशानी ये है, या अंग्रेजी की का जो मूड है, कि ये क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस भी इस्तेमाल करते हैं, फेल मजहूल भी, और जो फाइल है उसको भी इस्तेमाल कर देते हैं, हेडेड बाई इस्लामिक रॉयल्टी। तो क्योंकि हमारे यहाँ फेल मजहूल को मालम युसम्मा फ़ाइलु कहते हैं, और फेल मजहूल हम इस्तेमाल करने के लिए वहीं पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ फाइल का पता ना हो, तो और जहाँ फाइल का पता हो वहाँ पर हम फेल मारूफ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर इसको मारूफ के अंदर तब्दील कर दें। यानी मारूफ क्या था, मारूफ है यरअसु, यरअसु। अब कुल्लम मिन्हा जो है वो, ये हमने अपनी तरफ से बढ़ा दिया उसको खूबसूरत बनाने के लिए। ये जो है ना, ये कुल्लम मिन्हा, ईच ऑफ दीज स्टेट्स, ये हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर, ये हमारी तरफ से एडिशन हो गया इसका। इस्लामिक रॉयल्टी यर असुकुल्लम मिन्हा, तो ये एक चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिली कि यहाँ पर जो है वो फेले मजहूल हो, और फाइल जो है उसका वो जिक्र भी किया गया हो इंग्लिश मूड के एतबार से, बहुत कॉमन यूज है ये, कि फेले मजहूल यानी पैसिव वॉइस भी इस्तेमाल करते हैं, और जो उसका सब्जेक्ट होता है वो भी दे देते हैं। अरबी के अंदर ऐसा नहीं करते। तो इसका करने का एक तरीका तो ये है, यर असुकुल्लम मिन्हा,
اور اس کا ترجمہ بھی آپ ساتھ ساتھ کر لیے. ملکن رائلٹی کا ترجمہ کیا ہم نے. اسلامک کا ترجمہ کریں گے مسلم. اسلامک رائلٹی جو ہے وہ اسلامک کرتے ہیں کہیں کہیں، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے ہم لوگ مسلم کر دیتے ہیں. تو ملکن مسلم، تو یہ گویا جو ہے وہ ہو گیا یرأسو کلم منہا ملکن مسلمن. تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا اس کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم تو جو ہے وہ ویسے ہی استعمال کریں گے، اور ہم جو ہے وہ جیسے انگریزی کے اندر ہے ویسے ہی ہم استعمال کریں گے. تو اب یہ بڑا جہاں پر جو ہے پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا. اس کو یہاں پہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. میرے خیال میں یہاں پہ آپ اس کو اومٹ کر دیے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی تک جو ہے وہ آپ رہنے دیے. میرے خیال میں یہاں تک جو ہے وہ ہم بس کرتے ہیں اور اپنی کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ سے ہم آپ جو کچھ ہم ٹپس آپ کو دے رہے ہیں دیکھیے اس کو آپ نوٹ کرتے رہیے. ہم بہت گویا خون جگر کے ساتھ آپ کو پڑھا رہے ہیں. اب امید کرتے ہیں کہ آپ قدردانی کریں گے اور اس سے سیکھیں گے.